Hello, I am Dr. Girish Rai Singhani, Associate Professor, Department of Botany, SPC Government College अजमेर। आज हम डिस्कस करेंगे माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिजम्स के बारे में, जिसको हम शॉर्ट में MLOs भी कहते हैं। माइकोप्लाज्मा वर recognized in 1966 by International Commission on Nomenclature of Bacteria, Subcommittee on Taxonomy of Mycoplasmatales class molecules. That time there was only one genus known Mycoplasma, but now there has been more than one genre known. American scientists working on corn stunt disease observed some helical form filaments from sap of infected plants in 1972. These structures had no cell wall but were surrounded by a unit membrane. The filaments had flexible bending and curling motion like spirochetes. In 1973, Davis and Worley named these organisms as Spiroplasma. Spiroplasma have so far been found in citrus plants infected with stubborn disease, that is Spiroplasma citrus, in corn stunt disease, and in Bermuda grass showing witch's broom symptoms. Like Mycoplasma, Spiroplasma have a wide range of hosts extending from fungi to plants and arthropods to vertebrates. Spiroplasma, unlike Mycoplasma-like organisms, satisfy Koch's postulates. Now, L form of bacteria. Bacteria often produce variants that fail to produce cell wall. The wall-less bacteria called L form or L phase bacteria. L form bacteria are usually produced in laboratory conditions when penicillium or other substances that inhibit cell wall production are added to culture medium. L form is now accepted as a general property of bacterium. The only plant pathogenic bacterium reported to produce L form is Agrobacterium tumefaciens, the causal agent of crown gall disease. ऐसे बैक्टीरिया जो सेल वॉल प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, जिनको हम वॉललेस बैक्टीरिया कहते हैं, उनको हम एल फेज बैक्टीरिया भी कहते हैं। उनको इस श्रेणी में रखा जाता है और यूजुअली लेबोरेटरी कंडीशंस में क्या कहते हैं उनको प्रोड्यूस किया जाता है। और इसके कारण क्या है कि इनकी सेल वॉल प्रोडक्शन इनहिबिट हो जाता है। और बट नाउ पहले इनको माइकोप्लाज्मा माना जाता था, लेकिन अब इनको प्योरली बैक्टीरियम ही माना जाता है। इनको बैक्टीरियम के साथ ही रखा जाता है। और जब प्लांट पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो है वो है दैट इज़ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस, और जो कि क्राउन गॉल डिजीज़ कॉज करता है। ये कुछ प्लांट डिजीज़ हैं जो कि माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिजम्स के द्वारा ट्रांसमिट होती हैं या कॉज होती हैं। Number 1 is alfalfa witch's broom, ester yellows, citrus greening, citrus stubborn, clover phyllodes, coconut lethal yellowing, corn stunt, eggplant little leaf, little peach, sugarcane white leaf, tomato big bud, tomato yellow dwarf, witch's broom of groundnut, papaya bunchy top, peach yellows, pear decline, potato purple top, potato marginal flavescence, potato witch's broom, rice yellow dwarf, sandalwood spike, sugarcane grassy shoot, sunflower phyllodes, tomato purple top, yellow leaf of erica palm and yellow wilt of sugarcane। ये कुछ डिजीज़ हैं जो कि माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिजम्स द्वारा प्लांट्स में कॉज होती हैं। अब अपन ने डिस्कस कर लिया है
वायरस भी डिस्कस कर लिया अपन ने, माइकोप्लाज्मा भी अपन कर चुके हैं डिस्कस, और बैक्टीरिया भी डिस्कस कर चुके हैं। अब ये टेबल जो दिखा रहा है वो इसमें हम डिस्कस करेंगे द कंपैरिजन बिटवीन माइकोप्लाज्मा, प्लांट वायरसेस एंड बैक्टीरिया। सबसे पहले हम शेप लेते हैं। माइकोप्लाज्मा जो होती है उसमें पॉलीमॉर्फिक शेप होता है, प्लांट वायरसेस में रिजिड शेप होता है, रिजिड होती है शेप, और बैक्टीरिया में भी रिजिड होती है। साइज़ जो होता है वो 0.1 माइक्रोन टू 7 माइक्रोन माइकोप्लाज्मा में, और प्लांट वायरसेस में वेरिएबल होता है, स्फीयर्स होते हैं, 18 टू 18 माइक्रोन मीटर रॉड्स होती हैं, या 180 टू 1250 nm रॉड्स होती हैं। सेल वॉल की अगर हम बात करें तो माइकोप्लाज्मा में म्यूकोपॉलीसैकेराइड नहीं पाया जाता है, उसके बजाय इंस्टेड 10 nm थिक ट्रिपल लेयर्ड मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट। जबकि प्लांट वायरसेस में सेल वॉल म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स इज नॉट प्रेजेंट, और बैक्टीरिया में सेल वॉल विथ म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स इज प्रेजेंट। इसमें सेल वॉल में म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स प्रेजेंट होते हैं बैक्टीरिया में। डीएनए एंड आरएनए की बात अगर करें तो माइकोप्लाज्मा में दोनों पाए जाते हैं, डीएनए भी और आरएनए भी। प्लांट वायरसेस में सिर्फ आरएनए या कुछ में डीएनए भी पाया जाता है, जबकि बैक्टीरिया में दोनों प्रेजेंट होते हैं, डीएनए और आरएनए। अगर हम बात करें मल्टीप्लिकेशन की, फॉर मल्टीप्लिकेशन डिपेंडेंट ऑन होस्ट न्यूक्लिक एसिड। अगर हम ये कहें कि अपने मल्टीप्लिकेशन के लिए जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो होस्ट के न्यूक्लिक एसिड पर डिपेंडेंट होता है, तो माइकोप्लाज्मा नहीं होता। प्लांट वायरसेस डिपेंडेंट होता है अपने होस्ट न्यूक्लिक एसिड पे अपने मल्टीप्लिकेशन के लिए, और बैक्टीरिया भी नहीं होता अपने मल्टीप्लिकेशन के लिए डिपेंडेंट अपने होस्ट के ऊपर। दूसरा पॉइंट अगर हम लेते हैं, एबिलिटी टू सिंथेसाइज देयर ओन न्यूक्लिक एसिड, अपना न्यूक्लिक एसिड सिंथेसाइज करने की एबिलिटी तो माइकोप्लाज्मा में होती है, प्लांट वायरसेस में नहीं होती, और बैक्टीरिया में होती है। ऑब्लिगेट पैरासिटिज्म की बात करें, जो होस्ट पर्टिकुलर होस्ट चाहिए अपने ग्रोथ और प्रोडक्शन के लिए, तो माइकोप्लाज्मा में नहीं चाहिए, ऑब्लिगेट पैरासिटिज्म नहीं पाया जाता। प्लांट वायरसेस की बात करें तो उसमें भी नहीं है, बट कंसिडर्ड ऑब्लिगेट प्लांट पैथोजेंस, इनको प्लांट पैथोजेंस हम कह सकते हैं, जबकि बैक्टीरिया में नहीं होता ऑब्लिगेट पैरासिटिज्म। फिर हम बात करते हैं, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम कल्चर मीडियम में सेल फ्री मीडियम में कल्चर कर सकते हैं, इनको ग्रो कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो माइकोप्लाज्मा की अगर हम बात करें तो उनको हम कल्चर कर सकते हैं। प्लांट वायरसेस को सेल फ्री मीडियम में कल्चर नहीं कर सकते, ये पहले भी अपन डिस्कस कर चुके हैं। और अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो भी हम बैक्टीरिया को भी हम कल्चर सेल फ्री मीडियम के ऊपर कर सकते हैं, इजीली कल्चर हो सकता है बैक्टीरिया भी। फिर हम बात करते हैं डिस्कवरी की। माइकोप्लाज्मा जो है ये अर्ली डिस्कवरी है, रीसेंट डिस्कवरी है, और जो प्लांट वायरसेस हैं ये अर्ली डिस्कवर्ड थे, और बैक्टीरिया की भी अर्ली डिस्कवरी है।